In this video, I will explain about what is element. This is from Pradeep book of class 11th. An element is usually defined as the simplest form of a pure substance with a definite physical and chemical properties and which can neither be broken into nor built in from simpler substance by any chemical or physical method. एलिमेंट क्या है? एलिमेंट को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई भी प्योर सब्सटेंस का सबसे सिंपल फॉर्म, छोटा सबसे फॉर्म जिसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डेफिनेट रहता है और वो तोड़ा नहीं जाता, नीदर भी ब्रोकन, और ना ही वो किसी और चीज़ से बना रहता है, मतलब कि वो सिंपलेस्ट सब्सटेंस है, सबसे छोटा है. ठीक है. This definition is, however, not correct since chemists and physicists together have recently shown that element can be broken down into and synthesized from simpler substance with the discovery of atom and molecule as a fundamental unit of matter. The definition has not been modified as follows. An element is defined as a pure substance that contains only one kind of particles. These particles may be atom or molecules. ये डेफिनेशन है जो कि केमिस्ट और फिजिस्ट अब इसको करेक्ट नहीं मानते हैं और भी कुछ उन्होंने रिसर्च वगैरह किया है, तो उसकी वजह से जो एलिमेंट है वो और भी छोटे में टूट सकता है और भी सिंपलर सब्सटेंस से बन सकता है. तो एटम और मॉलिक्यूल की डिस्कवरी एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर की गई. तो एलिमेंट क्या है? तो एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. दीज पार्टिकल्स मे बी एटम और मॉलिक्यूल्स. तो व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो कि सिर्फ एक टाइप का पार्टिकल रखता है और दीज पार्टिकल्स मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड these particles can be atoms or molecules. Can be, it is atoms and molecules. For example, carbon, sulfur, iron, lead, gold, mercury, hydrogen, oxygen and nitrogen are some example of a familiar element. Thus, whereas iron, gold, copper, etc. contain single atom as a constituent particle held together in some other case, constituent particles are molecules which contain two or more atoms combined together. These are the examples which are familiar elements. Or whereas iron, gold, copper contains only single atoms as a constituent particles held together. In some other case, constituent particles are molecules which contain two or more atoms combined together. For example, hydrogen, oxygen and nitrogen consist of molecules comprising of two atoms combined together. Like hydrogen H2 और oxygen O2 and nitrogen O2 के N2 के फॉर्म में रहता है. जैसे कि ये दो मॉलिक्यूल्स कंटेन, एक मॉलिक्यूल्स है जिसमें दो एटम्स कंटेन करते हैं, कंबाइन होके रहते हैं. एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन टू डेट इज 114. और एलिमेंट्स, ये सब जो एलिमेंट्स हैं अभी तक में 114. ये बुक थोड़ी पुरानी है, अभी 118 है. ऑफ दीज 92 ऑकर इन नेचर इन द अर्थ क्रस्ट, जिसमें कि अभी तो ये हो गया है 118. ऑफ दीज 92 अर्थ क्रस्ट में रहता है एंड द रिमेनिंग हैज बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरी थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शन. और सारे न्यूक्लियर रिएक्शन से लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं. द नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इन वेरिंग प्रोपोर्शन. जो अलग अलग प्रोपोर्शन में एलिमेंट डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. द एलिमेंट आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, नेमली फर्स्ट मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड. 3 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं. फर्स्ट मेटल आर दोज एलिमेंट विच रिफ्लेक्ट लाइट्स एंड hence poses luster, चमक. They are good conductor of heat and electricity, malleable, hammered to form sheet and ductile that can be drawn into wire. Exist as solid at room temperature except mercury and possess high density. Some example of
some example of common metals are copper, silver, gold, aluminium, iron, lead, tin, nickel, chromium, mercury, etc. Majority of the element, about 65% are metal. जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे इधर पढ़ा 118 एलिमेंट्स नोन है, तो इसमें कि जो 65% है वो मेटल्स हैं. मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्लेक्ट्स लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, चमक होती है, हीट को का गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, मैलिएबल मतलब सीट के फॉर्म में उसको मेटल्स को पतले सीट में चेंज किया जा सकता है, डक्टाइल है तो पतले वायर में उसको चेंज किया जा सकता है, सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर में, मर्करी को छोड़ के सब सॉलिड रहते हैं और हाई डेंसिटी उन सबकी हाई रहती है. तो एग्जांपल्स भी दिया गया है यहाँ पे कुछ, सिल्वर, कॉपर, ये सब एक्सेट्रा. नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स आर दूज एलिमेंट विच डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट्स एंड हैंड डज नॉट पॉजेस luster, the only exception being iodine. Further, they are brittle, poor conductor of heat and electricity except graphite, and exist in all three states. Sulfur, phosphorus, iodine are solid, bromine is liquid, while nitrogen, oxygen, hydrogen, chlorine, etc. are gases. तो नॉन मेटल्स आर डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट्स, इनकी प्रॉपर्टी ये है. डज नॉट पॉजेस लस्टर, चमक नहीं है, आयोडीन को छोड़ के एक्सेप्शन, एंड दे आर ब्रिटल मीन्स आवाज़ करते हैं, एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट को छोड़ के. एंड ये नॉन मेटल्स तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो सॉलिड में ये फॉस्फोरस, आयोडीन ये सब हो जा रहे हैं, और लिक्विड में सिर्फ एक ब्रोमीन आता है, और गैसेस में ये सब है. मेटलॉइड्स, अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो एलिमेंट्स इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के बीच में आते हैं, इन दोनों के जो मेटल्स नॉन मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक है उन दोनों के बीच में आता है, तो उसको मेटलॉइड बोलते हैं. तो दीज विच पॉजेज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मतलब कि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, तो मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स. फॉर एग्जाम्पल मेटलॉइड्स आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब मेटलॉइड है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. You can watch next video of compound. Thank you.